بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے خبر دیں، اندرون لاہور ٹکسالی گیٹ میں رات گئے خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق عمارت کے ملبے سے 4 بچوں سمیت 7 افراد کو نکالا گیا ہے۔ 60 سالہ جاوید، 45 سالہ روبینہ اور 15 سالہ آمنہ، 5 سالہ حسن، 7 سالہ زیغم اور 4 سالہ ایان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے ہیں۔ 2 بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہیں۔ جاں بحق افراد میں 3 سگے بھائی تھے۔ جاں بحق شخص جاوید اور ان کی بیوی روبینہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ لاہور میں ٹکسالی گیٹ میں پیش آئے افسوسناک حادثے کے مقام پر موجود ہیں جیو نیوز کی نمائندہ ام فروہ، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ ام فروہ، بتائے گا مزید کیا اپڈیٹ ہے؟ جی، میں اس وقت اندرون ٹکسالی گیٹ میں موجود ہوں اور یہ وہ گھر ہے جو کہ رات کو اس کی چھت گرنے سے 10 افراد زخمی ہوئے، 10 میں سے 6 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 4 زخمی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ اگر ہم اس گھر کے حوالے سے آپ کو دکھانا چاہیں تو یہ حالت اس کی ایسی تھی کہ یہ جیسے ہی ساتھ والی جو گھر ہے جو کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا، اس کی دیوار گری ہے اس گھر کی چھت کے اوپر، اور اس گھر کی چھت کے اوپر جب وہ دیوار گری ہے اس کے گرنے سے یہاں پر جو افراد مقیم تھے وہ زخمی ہو گئے اور اس میں سے کچھ لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہو گئی ہیں۔ اور اس گھر کی خستہ حالی کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور صرف یہی گھر نہیں ہے جہاں پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ پراپر مضبوط طریقے سے چھت نہیں بنی ہوئی۔ اس کے ساتھ جو بلڈنگز ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے، دراریں پڑی ہوئی ہیں، کئی وہ گھر بھی یہاں پہ ہے جو کئی سالوں سے بند پڑے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جیسی چھت گری ہے جو یہاں پہ ان کمروں میں سو رہے تھے وہ ان میں سے کچھ لوگ مر چکے ہیں اور کچھ لوگ زخمی ہیں۔ جی، راجن پور سے گزرنے والے سیلابی ریلے میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت 5,60,000 کیوسک کا سیلابی ریلا کوٹ مٹھن سے گزر رہا ہے۔ بدین اور نوکوٹ کے سیم نالے میں پڑنے والے شگاف پر نہیں کیے جا سکے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بڑھنے سے خیرپور اور گھوٹکی کے متعدد گاؤں زیر آب آ گئے ہیں۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ ملتان کے قریب سے گزرنے والے دریائے چناب میں پانی کی سطح میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق اس وقت 1,40,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ بیٹ کے ایریا میں رہنے والی آبادی اور مویشی سیلابی ریلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ راجن پور میں کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں سیلابی ریلے میں مستقل اضافہ جاری ہے۔ اس وقت 5,60,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ درجنوں بستیاں زیر آب آ چکی ہیں جبکہ مقامی آبادی کی نقل مکانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حفاظتی بندوں کی ڈرون کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ بدین کی تحصیل گلاڑچی میں 3LM نالے اور بہادر باغ کے شگاف 5 روز بعد بھی پر نہ ہو سکے۔ شگاف 70 سے 200 فٹ چوڑا ہو گیا اور 20 سے زائد دیہات لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ خیرپور میں دریا سندھ میں طغیانی سے کئی گاؤں اور فصلیں زیر آب آ گئیں۔ لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ نوکوٹ سیم نالے کا شگاف 8ویں روز بھی پر نہیں کیا جا سکا۔ میر پور خاص شہر کے بھی کئی علاقوں سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ دادو میں کاچھوں کے سیلاب متاثرین کی مشکلات بھی کم نہ ہو سکیں۔ گھوٹکی میں دریائے سندھ پر قادر پور اور آندل سندرانی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ 20 سے زائد گاؤں اور چاول اور مونگ کی فصلیں متاثر ہوئی ہیں۔ صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے مختلف حصوں میں سیلاب کے باعث مقامی آبادی کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ سیلابی صورتحال کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ملتان سے عمران چودھری، راجن پور سے الیاس رضا اور دادو سے ریاض ناریجو۔ جی، ملتان کی حدود سے گزرنے والے دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ محکمہ انہار کے ذرائع کے مطابق اس وقت دریائے چناب سے 1,40,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے جو کہ چند روز قبل تک 2,20,000 کیوسک تھا۔ اس دریائے پانی سے جہاں بیٹ کے ایریے میں رہنے والے انسانی آبادیاں متاثر ہوئی ہیں، وہاں پر مویشیوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جو اس سیلابی پانی سے متاثر ہوئی ہے، کیونکہ بیٹ کے ایریے میں رہنے والے لوگوں کا زیادہ تر جو ذریعہ معاش تھا وہ مویشی پالنا تھا۔ اس سیلاب پانی کے آنے سے پہلے جو سبز چارہ تھا اس کی پہلے قیمت 150 سے لے کے 170 کے فی من تھی، لیکن اب یہ 250 روپے فی من ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ملتان ضلع میں جو وبائی امراض ہیں جانوروں میں وہ بھی پھوٹنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، جس کے لیے ان کی جانب سے مختلف علاقوں میں ویکسین کا سلسلہ جاری ہے۔ جی، راجن پور میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق اس ٹائم کوٹ مٹھن کے مقام پر 5,60,000 کیوسک کا سیلابی پانی گزر رہا ہے۔ سیلابی پانی سے جو کچے کی آبادی ہے، جو لوگ غیر قانونی جو راستوں پہ دریائے سندھ کے آباد ہیں، وہاں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ درجنوں بستیاں وہ زیر آب آ چکی ہیں، وہاں لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے اب حفاظتی بندوں کی نگرانی کے لیے ڈرون کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ ڈرون کے ذریعے ہم جتنے ہمارے حفاظتی بند ہیں ان کی سرویلنس کر رہے ہیں منیمم ٹائم میں۔ دوسری چیز
जो पानी के अंदर फंसे हुए लोग हैं हम उनकी निशानदेही करके इन मस्जिद शहरीन की और जानवरों की निशानदेही करके उन तक फूड भी पहुंचा रहे हैं और उनको इवैक्यूएट भी करें। दरिया के अंदर फंसे हुए हैं उनकी भी निशानदेही होती है इस ड्रोन के जरिए और लोगों को फिर रेस्क्यू भी किया जा रहा है इसी ड्रोन की मदद के जरिए। जी मैं अभी काचो के इलाके छिनी में मौजूद हूँ। छिनी का शुमार काचो के उन इलाकों में होता है जहाँ पे खेत पहाड़ी नदी नालों में जब भी बारिश होती है कि तमाम के तमाम 10 नालों का पानी इसी मकाम पे आकर जमा होता है। यही सबब है कि अब भी यहाँ पे पानी की सतह 10 फुट तक मौजूद है। पानी होने की वजह से इस इलाके में नकल हरकत का वाहिद जरिया सिर्फ कश्ती है। कश्ती भी हुकूमत सतह पर नहीं बल्कि निजी सतह पर यहाँ पर रखी गई है और मकामी जो आबादी है वो फी बंदा 50 के हिसाब से यहाँ पे सवारी करने में मजबूर है। ये इलाका जो मैं छिनी का है इसमें यूनियन काउंसिल छिनी के साथ साथ यूनियन काउंसिल टंडोर रहीम साबरों के 200 से ज़्यादा ऐसे देहात हैं जो इस पानी की वजह से उनका ज़मीनी राब्ता अपने तहसील हेडक्वार्टर न सिर्फ जोई से बल्कि सेवन से भी मुनक़ता है। सिंध के ज़िला मीरपुर खास में सैलाब के बायस 500 से ज़ायद मकान ज़ेरे आब आ गए हैं। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन भी तबाह हो गई है। मज़ीद बताएंगे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, आपको लग तो ये रहा होगा कि मैं किसी समंदर के किनारे बैठा हूँ, लेकिन ये ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है। हम इस वक्त कोट गुलाब मोहम्मद के एक गांव में मौजूद हैं। ये गांव मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है और ये इलाका पूरा जो है वो समंदर के मनाजिर पेश कर रहा है। मेरे कैमरामैन अगर आपको ज़िशान इकबाल दिखाएं तो यहाँ समंदर की लहरों की तरह यहाँ पानी आ रहा है और ये मज़ीद बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पानी अब यहाँ पर 6 से 7 फीट है और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं कई फीट पानी मौजूद है और मुताद्दिद गाँव यहाँ ज़ेरे आब आ चुके हैं। मेरी बैक साइड पर तमाम तर घर जो हैं ये भी मुतासिर होने का खदशा है। अगर इंतज़ामिया यहाँ ना पहुँची तो लोगों की ज़रई ज़मीन जो है वो तो मुतासिर हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ मवेशी भी मुतासिर हो रहे हैं और यहाँ बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। कुछ इस तरह की कंडीशन है। हमने मुतादिद गांव विज़िट किए हैं और देखा है कि तमाम तर गाँव में इसी तरह की सूरत हाल है। लोग बेयारो मददगार बैठे हुए हैं और इंतज़ामिया के मुंतज़िर हैं कि इंतज़ामिया कब आती है और कब उनको इस तरह के पानी से जो वो निजात दिलवाती है। जी फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मुल्जिमान हलाक हो गए। हलाक होने वाले 2 मुल्जिमान 14 साला बच्चे से ज्यादती और कत्ल में मुलव्वस थे, जबकि मरने वाले 2 मुल्जिमान डकैती और इस्मत दरी की वारदातों में मुलव्वस थे। CPO मोहम्मद सुहेल चौधरी के मुताबिक पुलिस पार्टी 14 साला लड़के जैन से ज्यादती और कत्ल में गिरफ्तार मुल्जिमान सज्जाद ढोलकी और अल्लाह रखा को असलहे की बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी, जिन्हें छुड़वाने के लिए 8 मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। मुबैना मुकाबले में ज़ेरे हिरासत दोनों मुल्जिमान और 2 हमलावर हलाक हुए। मरने वाले हमलावर आबिद हुसैन के खिलाफ 41 और खालिद के खिलाफ 43 डकैती और इस्मत दरी के मुकदमात दर्ज थे। चारों लाशें पोस्टमार्टम के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कराची में पेश आए वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची के इलाके महमूदाबाद नंबर 5 में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। शौहर और उसका दोस्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि शौहर ने अरीबा के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। MLO जिना अस्पताल का कहना है लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही खुदकुशी या कत्ल का फैसला हो सकेगा। अरीबा के वालिदैन ने बताया कि अरीबा ने 4 माह पहले दूसरी और पसंद की शादी की थी। उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कमर अली मस्तोई। पुलिस के मुताबिक जावेद नामी शहरी ने 15 पर महमूदाबाद नंबर 5 के एक मकान में उनकी बेटी अरीबा की खुदकुशी की इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जाए वकुआ का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि कमरे की ऊंचाई ज्यादा न होने की वजह से फंदा लगाकर खुदकुशी करने का इम्कान नहीं था। पुलिस के मुताबिक अरीबा के खावंद ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की थी। पुलिस ने खातून के शोहर शमशाद और उसके दोस्त साद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। अरीबा के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी की ये दूसरी और पसंद की शादी थी। कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। मेरी वालदा के फ़ोन पे फ़ोन आया हुआ था मेरी बेटी के ही नंबर से कि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप घर आ जाएं। तो मैंने उसके पलट के उसके शौहर को बोला, अगर उसकी हालत ख़राब है तो तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, तुम उसको फ़ौरन लेके डॉक्टर के जाओ। वो डॉक्टर के उसको लेके नहीं गया। जल्दी हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, देखा है तो सामने उसकी फंदा लगी लाश पड़ी हुई थी। MLO जिना अस्पताल डॉक्टर जकिया ने बताया कि पोस्टमार्टम हो चुका, मौत की वजह रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगी। पुलिस का कहना है कि जाए वकुआ से मिलने वाले शवाहिद लड़की के कत्ल की तरफ इशारा करते हैं। मकतूला ने अपने पहले शौहर से खुला ले ली थी। कैमरामैन से नासिर अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची।
कोरोना की वैक्सीन आने की सूरत में 63% पाकिस्तानी इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर रहे हैं। अलबत्ता 37% वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नजर आए। इस बात का इंकिशाफ IPSOS पाकिस्तान ने अपने सर्वे में किया। सर्वे में मजीद क्या है, रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में अगर कोरोना की वैक्सीन आ जाती है तब भी मुल्क में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो इसे इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद नहीं। इस बात का इंकिशाफ IPSOS पाकिस्तान ने अपने सर्वे में किया, जिसमें मुल्क भर से 1000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी की सूरत में इसे लगवाने के सवाल पर हैरान कुन तौर पर 63% अफराद ने वैक्सीन न लगवाने का कहा, जबकि 37% ने वैक्सीन लगवाने का इरादा जाहिर किया। जिसके बाद अवाम से पूछा गया कि आपके ख्याल में कोरोना की वैक्सीन कब तक आ जाएगी, तो 21% ने 6 माह में कोरोना की वैक्सीन दस्तयाब होने की उम्मीद जाहिर की। 27% ने 1 साल, 23% ने 2 से 3 साल, जबकि 9% ने 3 साल से जायद का अरसा लगने का कहा, जबकि 20% ने कहा कि वैक्सीन कभी दरियाफ्त नहीं होगी। वैक्सीन की दस्तयाबी की सूरत में सर्वे में आवाम ने 300 रुपए वैक्सीन के लिए देने का कहा। इसके बाद सर्वे में कारोबारी सरगर्मियों के बारे में पूछा गया, जिसके जवाब में हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों ने मुलाजमतों और कारोबारी सरगर्मियों के बहाल होने का कहा। इसके अलावा कोरोना के बारे में बाखबर रहने के लिए आवाम ने सबसे ज्यादा यानी 74% ने मकामी न्यूज चैनल्स पर भरोसा होने का कहा, जिसके बाद 54% ने मजहबी मकामात जैसे मस्जिद, मंदिर और गिरजाओं से दी जाने वाली मालूमात पर भरोसा होने का कहा। 47% ने जाती मुआलिज, 38% ने व्हाट्सएप, 31% ने गैर मुल्की न्यूज चैनल्स, 31% ही ने अखबारात, 28% ने फेसबुक, 26% ने यूट्यूब, 24% ने हुकूमती वेबसाइट, 22% ने इंटरनेट, 18% ने रेडियो तो 17% ने ट्विटर पर कोरोना की मालूमात के हवाले से भरोसा करने का कहा। सर्वे में ये देखा गया कि इस साल जून में 79% वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि मौजूदा सर्वे में ये शरह 42% कमी के बाद 37% रह गई है। स्कूल भेजने की मुखालफत करने वाले वालिदैन की शरह तमाम सूबों में कम हुई, जिसमें जून के मुकाबले में सबसे ज्यादा कमी बलूचिस्तान में देखी गई, जहां 84% के मुकाबले में मौजूदा सर्वे में 22% ने बच्चों को स्कूल न भेजने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता सर्वे में 74% तो मौजूदा सर्वे में 28% ने बच्चों को स्कूल भेजने की मुखालफत की। पंजाब में ये शरह 80% से कम होकर 38% हो गई, जबकि सिंध में जून में 82% तो मौजूदा सर्वे में 41% ने बच्चों को स्कूल न भेजने का कहा। और अब आपको बताएं कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब और CCPO लाहौर के दरमियान इख्तलाफात का मामला वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार तक पहुँच गया। CCPO उमर शेख की तैनाती के बाद IG पंजाब 3 रोज से अपने दफ्तर नहीं आए। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला करेंगे। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं रईस अंसारी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब शुएब दस्तगीर और नए तैनात होने वाले CCPO लाहौर उमर शेख के दरमियान इख्तलाफात की बातें ईवान वज़ीर आला तक पहुँच गईं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने IG पुलिस शुएब दस्तगीर को तलब करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि IG पंजाब को बुलाकर मौक़िफ़ सुना गया, CCPO को भी बुलाया जाएगा, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक IG पंजाब ने वज़ीर आला को बताया कि CCPO ने उनकी कमांड के मुतालिक मीटिंग में बात की और पुलिस अफसरान को मेरी बात ना मानने का कहा। CCPO का इस तरह का अमल फोर्स के मोराल को खराब करेगा। ज़राए के मुताबिक CCPO लाहौर उमर शेख ने अफसरान को IG पंजाब के बराह रास्त हुक्म मानने से मना किया था। ज़राए ने यह भी दावा किया कि CCPO ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि IG पंजाब का हुक्म पहले उनके इल्म में लाया जाए। 3 रोज से दफ्तर ना आने के हवाले से IG पंजाब शुएब दस्तगीर का कहना है कि वो खराबी तबीयत की वजह से ऑफिस नहीं आ रहे। दूसरी जानिब CCPO उमर शेख ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IG मेरे कमांडर हैं, उनकी नौकरी 30 और मेरी 28 साल है। अब प्रोपेगेंडा है, लोगों के लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेस्ट हैं यहाँ पे। मेरे IG साहब को पहली दफा पुलिस में नहीं आए, वो 30 साल से पुलिस में है, मैं 28 साल से पुलिस में हूँ। मेरे वो मुझसे 2 साल सीनियर है, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और मेरे कमांडर है। ये हो सकता है कि मैं अपनी नीचे वाली फोर्स को अंडर कमांड लाना चाहता हूँ, डिसिप्लिन में लाना चाहता हूँ और खुद ना हूँ। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए सिर्फ एक ट्रेन यानी जाफर एक्सप्रेस चलाई जा रही है। इस सूरत हाल से ट्रेन के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना रहता है। सूरत हाल बताएंगे कोयटा से रेलवे स्टेशन पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। हाँ जी, कोयटा से अंदरून मुल्क सिर्फ एक ट्रेन इस वक्त चलाई जा रही है, कोयटा से रावलपिंडी के लिए जाफर एक्सप्रेस। ताहम जो बाकी ट्रेनें हैं वो गुज़श्ता चंद माह से आर्जी तौर पर मुअत्तल की गए हैं, जिसमें कोयटा से कराची जाने वाली ट्रेन है बुलान मेल और कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन अकबर बुगटी एक्सप्रेस है वो, और इसके अलावा जो चमन जो पैसेंजर ट्रेन है
ये तीनों सर्विसेज गुज़िश्ता चंद माह से मअतल किए हुए हैं और सिर्फ एक ट्रेन जारी है, जिसकी वजह से क्वेटा से जो अंदरूनी मुल्क जाने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना रहता है। इस हवाले से महकमे जो रेलवे हुकाम है उनका ये बताना है कि जो ही उन्हें वफाक और वजारत रेलवे की जानिब से अहकामात मिलेंगी उसके बाद वो ट्रेन सर्विस बहाल कर देंगे।